Hello friends, welcome to GK Notes. So in this video we are going to study about the administration of Vijayanagar Empire. And please do share, like and subscribe GK Notes and press the bell icon so that you may get notifications whenever any new video comes. Please GK Notes को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी न्यू वीडियोज़ आएँ. Now let's get started. Question number 1. What was the special feature of provincial administration? The answer is Nayankar system was the special feature of provincial administration. तो provincial administration का special feature क्या था विजयनगर एम्पायर में? इसका आंसर नयनकार system. Question number 2. What was the special feature of village administration? The answer is Iyengar system. And Iyengars were the body of 12 functionaries and they conducted village affairs. तो जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसका स्पेशल फीचर क्या था? तो अयंगार सिस्टम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर था और एक बॉडी था 12 फंक्शनरीज़ का जो विलेज के अफेयर को कंडक्ट करवाते थे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वर द टैक्स फ्री लैंड्स कॉल्ड? द आंसर इज मनेआम्स. तो जो कर मुक्त ज़मीन थी विजयनगर एम्पायर में उसे क्या कहते थे? इसका आंसर है मनेआम्स. क्वेश्चन नंबर 4. What were the gold coins issued by Vijayanagar rulers known as? So the gold coins issued by Vijayanagar rulers were known as varas or pagodas, and parta was equal to half vara and fanam was equal to 1/10 of parta. तो जो विजयनगर रूलर्स थे उन्होंने सोने के सिक्कों को इशू किया था और उसे क्या कहा जाता था? तो जो सोने के सिक्के थे उन्हें वराह या पगोड़ा कहते थे और पर्टा का वैल्यू था वो हाफ वराह के बराबर था और जो फानम था वो पर्टा के 10वें भाग के बराबर था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वर द सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड? द आंसर इज द सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड एज टार. तो जो सिल्वर कॉइन्स थे उन्हें क्या कहते थे? इसका आंसर है तार. एंड क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वर द कॉपर कॉइन्स कॉल्ड? द आंसर इज जीतल. तो जो कॉपर कॉइन्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो कॉपर कॉइन्स को जीतल कहा जाता था. Question number 7. Administrative units and their heads of Vijayanagar Empire. So you can see the table. On one side the administrative units are given and on the other side the head of those administrative units are given. So coming to the first administrative unit, that is Mandalam or province, and the head of the Mandalam was Mandaleshwar. Now the second one Nadu or the district, and the head of the Nadu or the district was Nadu Prabhu. And the third administrative unit is Gram or the village and the head of the Gram was Gauda. So इसमें administrative units एक तरफ दिए हुए हैं और एक तरफ उन administrative units के head कौन है उन्हें क्या कहा जाता था ये दिया हुआ है. तो पहला है मंडलम. मंडलम के हेड को मंडलेश्वर कहते थे, नाडू के हेड को नाडू प्रभु कहते थे और ग्राम के हेड को कहते थे गौड़ा. Question number 8. Name the only empire in medieval India which employed women in the state services. The answer is the only empire in medieval India which employed women in the state services was the Vijayanagar Empire. तो वो कौन सा एकमात्र एम्पायर था medieval India का जो women को एम्प्लॉय किया था स्टेट सर्विसेज में? तो इसका आंसर है विजयनगर एम्पायर. Question number 9. What was the status of women in Vijayanagar Empire? The answer is the status of women improved and the women were employed in the state services. The women went to battles and widow remarriage was also promoted. तो women का क्या status था विजयनगर एम्पायर में? तो women का status था वो improve किया, women को employ किया जाने लगा state services में, women battle के लिए भी जाती थी और widow remarriage को भी promote किया गया विजयनगर एम्पायर में. Question number 10. What was the new style of architecture produced by the Vijayanagar rulers? The answer is Provida style. तो वो कौन सा नया स्टाइल था आर्किटेक्चर का जो कि विजयनगर रूलर्स ने प्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर है प्रोविडा स्टाइल जो था वो न्यू स्टाइल था आर्किटेक्चर का. Question number 11. So you can see the terms on one side of the table and the meaning of those terms on the other side. And these are the terms that were used during the Vijayanagar Empire in the medieval period. So coming to the first term, Viprulu. The meaning of Viprulu was Brahmins. Second is Rajulu and the meaning of Rajulu was Kshatriya.
Third is Nala Vajati Varu, and the meaning of Nala Vajati Varu was Shudras. Fourth is Vipra Vinodins, and the meaning of Vipra Vinodins was the artisans. Third is Kaikolas, and the meaning is weavers. And then Sahagaman, and the meaning of Sahagaman was Sati. And then the last one is Besa Baga, and the meaning of Besa Baga is forced labor. तो आप ये एक टेबल देख सकते हैं, एक तरफ टर्म्स दिए हुए हैं जो विजयनगर एम्पायर के समय यूज़ होते थे और राइट साइड में उनका मीनिंग दिया हुआ है। विप्रुलु ब्राह्मण को कहते थे, राजुलु क्षत्रिय को कहते थे, नाला वजाती वारु शूद्र को कहते थे, विप्र विनोदीन आर्टिसंस जो थे उन्हें कहा जाता था, काइकोलाज वीवर्स को कहते थे, साहगमन सती को कहा जाता था और बेसा बागा फोर्स्ड लेबर को कहते थे। Question number 12. What were the characters of Provida's style of architecture produced by the Vijayanagar rulers? The answer is number 1, large number and prominence of pillars and piers. So piers are the metal or wooden structure. Second point is horse was the most common animal on the pillars. And third point is mandapa or open pavilion with a raised platform meant for seating deities and Amman shrine. तो जो प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था जिसे विजयनगर रूलर्स ने प्रोड्यूस किया था उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पायर्स और पिलर्स बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते थे और ये एक प्रोमिनेंट फीचर था। सेकंड पॉइंट है कि जो मोस्ट कॉमन एनिमल था पिलर्स पे वो हॉर्स था। और थर्ड पॉइंट है कि मंडप बने हुए रहते थे जिसका प्लेटफॉर्म रेज्ड रहता था और वो बनाया जाता था देवताओं या जिसकी पूजा करते थे लोग उसके सीटिंग के लिए, और अम्मान श्राइन भी प्रेजेंट था। क्वेश्चन नंबर 13. नेम द इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. द आंसर इज विठल स्वामी एंड हजारा राम टेम्पल एट हम्पी, ताड़ापत्री एंड पार्वती टेम्पल एट चिदम्बरम, वरदराजा एंड एकाम्बरनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बताइए विजयनगर एम्पायर के। तो इसका आंसर है विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर जो कि हम्पी में है, ताड़ापत्री और पार्वती मंदिर जो कि चिदम्बरम में है, वरदराजा और एकाम्बरनाथ मंदिर कांचीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 14. विच रूलर्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड द महाभारत ऑन द वॉल्स ऑफ द वेरियस टेम्पल्स. द आंसर इज विजयनगर रूलर्स एंड वन सच एग्जाम्पल इज द विठल स्वामी एंड हजारा राम टेम्पल। तो वो कौन से रूलर्स थे जिन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि जो स्टोरीज़ थे रामायण और महाभारत के उन्हें मंदिर के दीवार पे उकेरा जाता था? तो इसका आंसर है विजयनगर रूलर्स। और ऐसे ही एक मंदिर का एग्जाम्पल है विठल स्वामी और हजारा राम मंदिर। जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आप चैनल के पेज पे भी जाके जितने भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडिवल हिस्ट्री के उसको आप देख सकते हैं। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो जीके नोट्स ऑन टेलीग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप जीके नोट्स को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके नोट्स। थैंक यू सो मच।